Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn the second prose from grade 12 Hindi reader book of your Tamil Nadu State Board. So the name of that prose is कला का विवेचन. कला का विवेचन, विवेचन का मतलब हुआ एक्सप्लेनेशन. कला मीन्स आर्ट्स, सो एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्ट्स. और इस गद्य को किन्होंने लिखा है? श्री बाबू श्याम सुंदर दास. ये जो लेखक हैं ये महान लेखक हैं. इनका जन्म 1875 को हुआ था, मृत्यु 1945 को हुआ था. डॉक्टर श्याम सुंदर दास अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत कुछ किया है हिंदी लिटरेचर के लिए. ये बहुत बड़े साधक थे, विद्वान थे, आलोचक थे, शिक्षाविद भी थे. यूनिवर्सिटी में जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं आजकल, वो कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी दिस हिंदी लिटरेचर. सो फॉर दैट Babu Samshundar Das had done a great effort, had given a great effort. He had written some books, so that's why it is very easy to learn for the students nowadays in the university of the Hindi books. So he had written some books also, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य लचन, then संपादित ग्रंथ, पाठ्य सामग्री निर्माण आदि में हिंदी जगत इन्होंने समृद्ध किया है. उन्हीं के अविस्मरणीय कामों ने हिंदी को उच्चतर पद पर प्रतिष्ठित करते हुए विश्वविद्यालय में गौरवपूर्वक स्थापित किया. All total you can tell that he was a great writer, great educationist, and he was very intelligent. He born on 1875, died on 1945, and he was famous with the name Babu Sahab. और इन्होंने बहुत सारे books he had written during his lifetime, and due to his strong effort, due to his hard work only nowadays in university all the students are easily getting the books for reading, and according to his writings, his effort, now in the universities well framed Hindi syllabuses are available, and everyone easily learning all these things. So as a whole we should proud with the Sri Babu Samshundar Das for his effort and for his hard work to establish Hindi literature in this position. So कला का विवेचन जो आपका है वो एक बहुत ही उच्च कोटि की लेखा है. इसकी सारांश समरी कुछ इस प्रकार है. वस्तुओं में उपयोगिता और सुंदरता लाने वाला गुण या कौशल को हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं. सो वस्तु मीन्स थिंग्स. वस्तुओं में जो उपयोगिता होता है, उपयोगिता मीन्स यूजफुल, और सुंदरता मीन्स ब्यूटीफुल. सो इफ thing is whatever the things going to be available in market or made by the particular group of people, if those things are not usable by the normal human beings, and if those are not very beautiful, then no one going to buy this. So वस्तुओं में जो उपयोगिता और सुंदरता लाने वाला गुण या कौशल को कौशल कला कहलाता है. कला मीन्स आर्ट्स. सो कला दो तरह के होते हैं. एक हुआ आपका उपयोगी कला और दूसरा हुआ आपका ललित कला. सो व्हाट इज उपयोगी कला एंड ललित कला? उपयोगी कला मीन्स यूजफुल आर्ट्स, दोस आर्ट्स व्हिच आर वेरी यूजफुल. ललित कला का मतलब फाइन आर्ट्स. सो बढ़ाई, सुनार, कुम्हार, राज, जुलाहा आदि के व्यवसाय उपयोगी कला में सम्मिलित हैं. सो व्यवसाय उपयोगी मीन्स, व्यवसाय मीन्स बिजनेस. सो दिस ऑल आर्ट्स, बढ़ाई मीन्स carpenter, सुनार is a goldsmith, कुम्हार those are who are making the pots with the clay, जुलाहा weaver. सो अगर हम इन लोगों के बात करें, बढ़ाई, सुनार, कुम्हार, they are doing their traditional jobs. Like weavers are used to weave the clothes, and
Carpenter, he used to make beautiful things from the wood, and which are useful, like we are using in our home, a table, chair, then dressing table, dining table, sofa set, bed, all are useful. They are necessary in our home. And sunar means goldsmiths. Goldsmith, they are making beautiful ornaments. So during the marriages and all other functions, we are going to use it. Kumar also, they are making the pots with the clay, and with those clay pots, so many things, घड़ा, मटका, बहुत कुछ सारे चीज ये बनाते हैं, और जो कि हर रोज, every day we are going to use them. सो ये आपका हुआ उपयोगी कला. उपयोगी कला मीन्स ये हमेशा हर रोज हम लोगों के, इंसानों के काम में आने वाली चीज है. तो ये बढ़ाई हुआ, सुनार हुआ, कुम्हार हुआ, चूल्हा, ये व्यवसायी उपयोगी कला में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि वे whatever the products they are making, by that products they are just selling those products and they're getting money and they're managing their family. So ये आपका व्यवसाय, बिजनेस ओरिएंटेड यूजफुल आर्ट्स वे. वास्तुकला. वास्तुकला का मतलब क्या है? आर्किटेक्चर. वास्तुकला मीन्स आर्किटेक्चर. मूर्तिकला. मूर्तिकला आपका हुआ स्कल्पचर. चित्रकला. चित्रकला means painting art, whatever the paintings you are nowadays seeing, those are. संगीत कला. संगीत कला का मतलब हुआ म्यूजिकल art. And काव्य कला. काव्य कला means writing the poems or some poetry. So poesy, poesy art is known as, ये ललित कला के अंतर्गत आते हैं. ललित कला मीन्स मैंने आपको बताया था कि फाइन आर्ट्स. सो दिस आर कमिंग अंडर फाइन आर्ट्स. सो दिस गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, बढ़ाई, सुनार, कुम्हार, चूल्हा, ये आपका उपयोगी कला में आया. वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिकल आर्ट, पोएसी, ऑल आर कमिंग अंडर दिस फाइन आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं. उपयोगी कला के कारण मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति होती है. पूर्ति होना मतलब पूर्ण होना, यानी फुलफिल. आवश्यकता means needs. So every human being is having some basic needs. So this useful arts, through these useful arts, what the people will do? Those people, they will make some things which are very useful and which are very necessary for the human beings, or for everybody. And whenever others need those things, this category of people, they are selling those things. After selling, after making and selling those things, they are getting money. Through that money, what they are doing? They are managing their families and they are fulfilling their basic needs. ललित कला के कारण मनुष्य को अलौकिक आनंद मिलता है. सो ललित कला जो फाइन आर्ट्स हुआ, with that human beings are getting one type of pleasure. They can feel अलौकिक आनंद उन्हें मिलता है. They are getting happy. They are relaxing their mind. So you can't express with the words. It is one type of happiness or pleasure. Like you are now listening to the music, so you are getting happy, you are relaxing your mind. So this type of happiness, this type of pleasantness you can feel only. So मनुष्य उपयोगी कला के कारण आपके मनुष्य के जो कुछ आवश्यकता रहती है वो पूर्ण होता है. ललित कला में मनुष्य एक तरह का आनंद उठाता है, एक तरह का खुशी मिलता है उसे. मनुष्य सुंदरता के पीछे पागल है. Yes, that one is the correct fact. Every human being, they are mad with the beauty of the things. Suppose I will ask you, take a clay pot. You will buy one clay pot from the market, and that
clay pot only, just plain. They have give the shape of a particular pot, or and they will sell. So you buy that one. Another person brings the same shape and size clay pot, but in that clay pot some arts are done, some paintings are done. So which one will be preferable? If you saw that, you'll think, why I won't go for that one. So every human being is a mad and beauty, क्योंकि मनुष्य ऐसा ही नेचर का है। हर इंसान ऐसे ही स्वभाव के होते हैं जिन्हें सुंदरता अच्छी लगती है। हर किसी को सुंदरता अच्छी लगती है, चाहे वो नेचर की हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, या फिर म्यूजिक, या फिर आर्ट्स, या फिर पेंटिंग। हर किसी को सुंदर चीजें अच्छी लगती है। इसलिए उपयोगी चीजों का सुंदर होना अनिवार्य हो गया। उपयोगी कला में जो चीज आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कारपेंटर, इफ वन कारपेंटर मेक ए सोफा सेट just simple, who will buy that? Nobody will go for that. If it is having some arts, some designs will be there, then definitely it will be going to attract the customer. So अभी जमाने को देखते हुए, बेस्ड ऑन द सोसाइटी, सो ये जो उपयोगी कला होते हैं, यूजफुल आर्ट्स होते हैं, उसमें भी सौंदर्य, ब्यूटी लाना जरूरी हो गया है। ललित कलाओं के दो भेद हैं। तो पहले मैंने बताया था कला के दो भेद हैं, एक हुआ उपयोगी कला, एक हुआ ललित कला। और ये जो ललित कला आते हैं, ये दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू कैटेगरीज। एक जो आंखों से देखकर अनुभव की जाती है, और दूसरी वे कलाएं जो कानों से सुनकर अनुभव की जाती है। दैट मीन्स दिस इज द टाइप ऑफ आर्ट which is categorized into two parts. Fine arts categorized into two parts, and in one part you can see the art and you can feel happy. Another one is there, you can listen to it and you can feel happy. सो जिस कला को मूर्त आधार की आवश्यकता होती है, वह निम्न कोटि, और जिस कला में मूर्त आधार कम होगा, वह कला श्रेष्ठ कला मानी जाएगी। वास्तुकला में आते हैं। वास्तुकला में क्या होता है? वास्तुकला में architecture. So architecture, so whenever you are constructing some art, you are making some art in architecture, so what basic things we are going to use in architecture? Bricks, stones. So ये जो ईंट और पत्थर, ये सारे मूर्त आधार होते हैं। The main concept or main thing in main aspect of this architecture is bricks and stones. With this bricks and stones, they are making the arts on it. मूर्त कला में पत्थर या धातु मूर्त आधार है। मूर्ति कला में पत्थर या धातु मूर्त आधार है। सो मूर्ति कला जो होता है, उसमें पत्थर या फिर धातु मीन्स मेटल मूर्त आधार मुख्य चीज होता है। चित्रकला में मूर्त आधार की मात्रा बहुत कम है। पेंटिंग में क्या होता है कि इसमें जो बेसिक थिंग्स, उसके अमाउंट, उसके जरूरत बहुत कम होते हैं। वास्तुकला को पांचवें स्थान, मूर्तिकला को चौथा स्थान और चित्रकला को तीसरा स्थान दिया गया है। दैट मीन्स आर्किटेक्चर इज कमिंग ऑन द फिफ्थ पोजीशन। मूर्तिकला में क्या हुआ? स्कल्पचर में ये फोर्थ पोजीशन में आता है। Architecture comes in fifth position, sculpture comes in fourth position, and painting, चित्रकला जो होता है, उसे तीसरा स्थान दिया जाता है। It is coming under third position. संगीत कला के मूर्त आधार की जरूरत ही नहीं पड़ती है। So जो बेसिक फाउंडेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थिंग्स होते हैं, जो ठोस चीजें होती हैं, जो मूल आधार होते हैं, वो संगीत में नहीं होता है, म्यूजिक में नहीं है, जरूरत नहीं पड़ता है। फिर भी इसके सात स्वरों के आधार, इसके आधार 7 स्वर हो सकते हैं। 7 स्वर कौन से हुए? हम जब म्यूजिक बनाते हैं, whenever we are making music, we are just focusing on the 7 सुर। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी, these are the 7
7 बेसिक थिंग्स है जिसे लेकर संगीत कला यानी म्यूजिक आर्ट बनाया जाता है। काव्य कला में मूर्त आधार बिल्कुल नहीं है, इसलिए ललित कलाओं में काव्य कला को ही उच्च स्थान दिया जाता है। काव्य कला में कोई भी आधार नहीं चाहिए, क्योंकि जब कवि लिखता है वो अपने मन से लिखता है, तो उसमें कोई आधार की जरूरत ही नहीं है। तो ये सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है काव्य कला को। पोएसी इज द topmost art among all the arts. I hope children you understood the summary. Now comes to the question answers. प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कला किसे कहते हैं? So what is art? जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में सुंदरता और आती है और उस वस्तु की उपयोगिता और बढ़ जाती है, उसे हम कला कहते हैं। सेकंड वन, कला के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार हैं? सो I told you that कला is defined into 2 categories. ये 2 तरह के होते हैं, एक है उपयोगी कला यूजफुल आर्ट, अनदर वन इज ललित कला फाइन आर्ट्स। ललित कला के कितने और कौन कौन से भेद हैं? ललित कला के 2 भेद होते हैं, जो अनुभव की जाती है, जिस कला को आंखों से अनुभव की जाती है और खुशी मिलती है, उसे नेत्रेंद्रिय जरा अनुभव किया जाता है। नेत्रोंद्रिय, नेत्रोंद्रिय मीन्स नेत्र प्लस इंद्रिय। नेत्र मीन्स आंख, इंद्रिय इट इज अ ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। जो आंखों से दिख के अनुभव की जाती है वो एक तरह का फाइन आर्ट्स होता है। जो कानों से सुनकर अनुभव की जाती है, जैसे कि म्यूजिक आर्ट हुआ, पोएसी हुआ, ये सारे आपके आते हैं श्रवणेंद्रियों। तो उपयोगी कला में कितने व्यवसाय सम्मिलित हैं? उपयोगी कला में यूजफुल आर्ट्स थ्रू व्हिच you can use this art as a profession and you can earn some money by using this art. So कौन सा है? बढ़ाई का काम हुआ, लोहार का काम हुआ, सुनार का काम हुआ, कुम्हार, चूल्हा, ये सारे व्यवसाय उपयोगी कला हैं। कलाओं से क्या लाभ होता है? उपयोगी कलाओं से मनुष्य का आवश्यकता पूर्ण होता है। आवश्यकता पूर्ण होता है मतलब the basic needs. Because I told you this carpenter, goldsmith, weaver, what is this are one profession. They are using their art as a profession and they are producing the products and they're selling that products and they're getting the money to fulfill their basic needs. आवश्यकता पूर्ण करने के लिए उन्हें ये चाहिए होता है। ललित कलाओं में क्या होता है? फाइन आर्ट्स में वी आर गेटिंग द प्लेजर, हैप्पीनेस, वी कैन फील द हैप्पीनेस, उसमें अलौकिक आनंद मिलती है। मानसिक विकास की कला क्या है और क्यों? ललित कला मानसिक विकास की कला है। मानसिक मीन्स mental development, vikas means development. Why lalit kala fine arts is the art for development of mind? Because whenever what are coming under this lalit kala or fine arts, music, dance, poesy, so what happened here? You are expressing the feelings of your inner heart. संगीत, नृत्य, काव्य, इनके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। and they can feel others sad sorrows. If anyone is in pain, others can feel that pain. दूसरों के दुख को वो अनुभव करने लगता है इस ललित कला के कारण। और इसमें क्या होता है कि आपका मन का विकास होता है, मानसिक विकास होता है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य सौंदर्य पाशक प्राणी है, मतलब मनुष्य को सुंदरता बहुत प्रिय है। क्या उपयोगी कला को जरूर सुंदर होनी चाहिए? और दिस आंसर yes or no, both will be right, because उपयोगी कला means these are useful arts through which one person is going to use this art as a profession and selling the products and getting the money to fulfill the basic needs of him. But based on this today's world,
there is a huge competition. So if for example one weaver preparing one sari, normal sari, simply only color combination is there, one border and one color. Suppose border is in a red color and normal body part will be now yellow color, so red and yellow combination sari he prepared. Another weaver prepared the same color combination sari, but inside that some golden thread work he did on the body part or pallu part. So which one is very attractive? Definitely the sari prepared by the second weaver. So due to this heavy competition, so it is now mandatory or needed to be beautify this useful art. So इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? नहीं, उपयोगी कला को जरूर सुंदर होनी नहीं चाहिए, फिर भी उसे सुंदर बनाने से ये जल्दी बिकती है. If your product is very beautiful, as I said that human beings are great lover of beauty, so they will buy. आपकी बिक्री और आपकी सेलिंग बहुत बढ़ जाती है और it will be also in demand. So based on your demand you are producing the product. So इसलिए उपयोगी कला को सुंदरता, उपयोगी कला में भी सुंदरता का मिश्रण यानी you have to mixed, you have to add extra beautiness in this useful arts. उपयोगी कला की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? मनुष्य ज्यों-ज्यों सभ्यता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है. उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उपयोगी कला ही कर सकती है, इसलिए उपयोगी कला की आवश्यकता बढ़ती जाती है. पहले जो सिविलाइजेशन होते थे, it was just as we know how human beings are developed. So initially they don't know how to cook the food, so they don't know vessels. Initially they don't know how to live inside a brick and cement made house. They used to live in jungles. So the civilization improved, similarly the human needs also improved. They know how to live their life in a better way. So जैसे जैसे हमारा सभ्यता ऊपर चढ़ता जाता है, उस मतलब विकसित होता जा रहा है, उसी हिसाब से मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है और उस आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वो कौन जिम्मेदार है? Which one is responsible? Useful arts, because those are the things which are going to give the needful products or to the society. मनुष्य को क्यों सुंदरता का आविर्भाव करना पड़ा? क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर डेवलपिंग, स्टेज वाइज दे डेवलप्ड. सो जो उन्नति के पथ में वो चले उसी के हिसाब से उनका ज्ञान भी बढ़ा. दे गेट मोर नॉलेजेस, सो दे हैव ग्रेट नॉलेज एंड ब्यूटी. दैट्स व्हाई दे नीड द ब्यूटीफुल थिंग्स. सो मनुष्य सभ्य होता गया और उन्नत भी होता गया. उस उन्नति के साथ उसके सौंदर्य का ज्ञान भी बढ़ता गया, इसलिए वो मानसिक तृप्ति, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए उसे सुंदरता का आविर्भाव करना पड़ा. सुंदरता का आधार क्या है? What is the main thing? What is the basic thing in beauty? सुंदरता का आधार, मूल क्या है? हर देश के लोग अपनी अपनी सभ्यता की कसौटी के अनुसार सुंदरता का आदर स्थिर करते हैं. अतः हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता ही सुंदरता का आधार है. Because see, Western culture and our culture, the dressing sense, makeup, all the living style, totally different. Their choice, our choice. We are having some traditional touch in everything. So, based on the civilization, based on the society, the basic concept or basic main thing of the beauty will be different. नेत्र द्वारा तृप्ति का विधान करने वाले कलाएं कौन सी है? नेत्र द्वारा तृप्ति मतलब those arts by seeing which human beings are getting satisfaction. So वास्तुकला, आर्किटेक्चर, शिल्पकला, चित्रकला, ये 3 नेत्र तृप्ति विधान करने वाली कलाएं हैं. कानों के द्वारा तृप्ति का विधान करने वाली कलाएं कितनी और कौन कौन सी है? कानों के द्वारा हम जैसे जानते हैं म्यूजिक,
आर्ट एंड पोइसी, संगीत कला और काव्य कला ये दोनों है. Because we have to listen, we are listening music, and whatever the poetry is written, we are reading and we are listening also. नाद का महत्व क्या है? नाद को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने से भिन्न भिन्न रसों और भावों का आविर्भाव होता है. नाद नाद मतलब ये एक तरह का साउंड होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, शंखनाद हुआ. शंखनाद मीन्स whenever they are playing any musical instrument, some sounds are coming. So whenever you are mixing those sounds in a particular rule, and you are gathering in a well organized format, you are gathering all these things. So different different emotions, different different सारे रस आपकी उत्पत्ति होते हैं. आपका एक व्याकरण में एक टॉपिक है रस, उसमें मैं जब लूंगी तो आपको बताऊंगी कि श्रृंगार रस, वियोग रस, इमोशंस कितने तरह के हैं, किन किन रसों के भाव क्या होते हैं. तो तभी हम रसों के बारे में डिटेल्स जानेंगे. अभी के लिए आपको ये सिर्फ जानना है कि नादों को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने से भिन्न भिन्न रस और भावों का आविर्भाव होता है. किन उपकरणों के द्वारा कलाओं का सन्निकर्ष मन से होता है? जिन उपकरणों द्वारा कलाओं का सन्निकर्ष मन से होता है वो चक्षुरेंद्रिय और कर्णेंद्रिय होते हैं. मतलब those arts whatever you are seeing, I sing or by listen, you are just satisfying yourself and you are getting a great pleasure. So the things are चक्षुरेंद्रिय, आंख and कान. ललित कलाएं किस दृष्टि से सौंदर्य का प्रत्यक्षीकरण है? मानसिक दृष्टि से. Mentally you are analyzing those arts. कौन सी बात संगीत की सीमा से बाहर है? यदि कोई चाहे वायु का प्रचंड वेग, बिजली की चमक, वायु का प्रचंड वेग, बिजली की चमक, मेघों की गड़गड़ाहट तथा लहरों की आघात भी हम सुनकर पहचान ले तो यह बात संगीत की सीमा से बाहर है. मतलब whenever air is blowing, so some sound is coming, and telling air blowing in a high speed, like that sound will come. बिजली चमकती है, बिजली चमकने के बाद whenever lightning happen, then one sound is coming. मेघों की गड़गड़ाहट, when it is raining, some sound is coming. लहरों के waves, समंदर में जो लहर उठते हैं उनका भी कुछ साउंड आता है. तो उसे अगर हम पहचान लेते हैं तो ये संगीत की सीमा से बाहर है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द म्यूजिक आर्ट. संगीत और काव्य दोनों अनन्याश्रय हैं. अनन्याश्रय मीन्स दैट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. स्पष्ट कीजिए, इस भाव को आप एनालाइज कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए. संगीत मन को भाता है. यस, वी लव टू म्यूजिक. उसमें गति भी सम्मिलित हो जाए तो दोनों मिलकर हम पर पूरा प्रभाव डालते हैं. एकांकी होने से दोनों का प्रभाव बहुत कुछ कम हो जाता है. इसलिए हम कह सकते हैं संगीत कला और काव्य कला दोनों अनन्याश्रित है. सिर्फ म्यूजिक होगा, only the musical instruments will be going to play and rhythm you have to follow. It will definitely give you some pleasure, but if you add some words, if you add some poetry and you are giving lyrics with music, it combined together, then it will give us a great pleasure, isn't it? So संगीत और काव्य, ये जो म्यूजिक हुआ और जो पोइसी हुआ, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. So alone they will give you happiness or satisfaction, but up to some extent, not fully. So music with this poetry, if they combine together, they will give you a great pleasure. कवि कैसे दूसरे के मन में अपना संबंध स्थापित करता है? कवि कैसे दूसरे के मन में अपना संबंध स्थापित करता है? How the poet is establishing the relationship or establishing himself in others' heart.
कभी भाव या मानसिक चित्र की सहायता से दूसरे के मन में अपना संबंध स्थापित करता है। कवि लिखता है, poet is writing a poem or poetry, so the words, the things, how he has to first imagine, you have to analyze, then he is writing on a plain paper. एक कोरे कागज पर वो लिखता है स्याही से, कभी पहले सोच के अपने मन के अंतरात्मा से कोरे कागज पर सफेद कागज पर काले स्याही से बहुत कुछ लिख डालता है, और वो जो लिखता है, वो जो पोएम बनता है, वो जो कविता बनता है, उसे जब हम पढ़ते हैं तो हमें कैसे महसूस होता है कि कवि जिस भाव से लिखा है उस भाव को हम समझते हैं, और इसी तरह से कवि हर पाठक के मन में, हर रीडर के मन में अपनी संबंध स्थापित करता है। ललित कलाओं में सबसे ऊंचा स्थान किस कला को दे सकते हैं और क्यों? जिस कला में मूर्त आधार की, ठोस आधार की कोई जरूरत नहीं, वो सबसे श्रेष्ठ कला है। और इसमें कौन आता है जिसमें ठोस आधार की जरूरत नहीं? वो है काव्य कला, पोएसी, क्योंकि उसमें कोई ठोस आधार, कोई यहाँ पे सिर्फ कभी लिखता है कविता, वो सोच के लिखता है। यहाँ पे आधार, जिसका ठोस आधार मतलब those things which are having physical existence, which are the basic things of that art. Like that, in painting we need colors, in architecture we need bricks and sand and metal, and apart from that, other arts also, fine arts, everything we are needing something. Music also, music art also, we are needing musical instrument. But here in case of your poesy, no poetry, no need of any physical things, no, nothing is here, the basic or fundamental थिंग नीडेड। ये यहाँ पर काव्य कला में कोई ठोस मूर्त जीवंत आधार नहीं चाहिए। यहाँ पर सिर्फ कवि सोच के लिखता है। यह शाब्दिक संकेतों के आधार पर माना जाता है। शाब्दिक संकेत मीन्स कवि जो लिखता है, जो वर्ड्स वो लिखता है, जो शब्द वो लिखता है, वो एक गहरा छाप छोड़ते हैं पाठक के मन में। इसलिए काव्य कला को हम सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। विस्तृत उत्तर दीजिए, कला के भेदों को सविस्तर समझाइए। मैंने आपको बताया था कला कितने तरह के होते हैं, कला क्या होता है, उपयोगी कला के अंदर क्या क्या आते हैं, सोनार, कुम्हार, राज, जुला, ये व्यवसायी जनित कला, उपयोगी कला होते हैं। ललित कला दो भागों में बढ़ते हैं। अगेन एक जो कानों से सुनकर होता है, एक आंखों से जो देखकर होता है। चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब, वास्तुकला, ये हम आंखों से देखते हैं। लेकिन संगीत कला, काव्य कला, ये ललित कला हम कानों से सुनते हैं। उपयोगी कला को सुंदर बनाना क्यों आवश्यक माना जाता है? We have already discussed in our short questions. I have elaborately explained why needed in this professional useful arts. It should be beautiful. Then ललित कला में संगीत कला का महत्व बताइए। संगीत का प्रभाव बड़ा विस्तृत है। उसका प्रभाव अनादिकाल से मनुष्य पे पड़ता आता है। जंगली से जंगली मनुष्य को लेकर सभ्याति सभ्य मनुष्य तक सब संगीत में बसीभूत होते हैं। So music is just like one thing who can this is a art which can what control everyone, whether human beings, whether wild animals, whether birds, normal animal, domestic animal, पशु पक्षी, जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स, जो कि अच्छे बुरे सभी इंसान को अपने बस में करता है संगीत। संगीत में क्या होता है, हम रो भी सकते हैं, इन्हें रुला सकता है, वी कैन क्राई, वो हंसा सकता है, वी कैन लैफ, हमारे दिलों में आनंद फैला देता है। We are getting some happiness, some pleasure, internal pleasure inside us. कभी कभी ये संगीत, we are sometimes whenever we are very sad, we are listening some sad songs. So ये क्या होता है, शोक के सागर में भी डुबा देता है. So we are touching with those music so much that we are in a separate world. हमारे हृदय में शांति की धारा बहा सकता है. So whenever we are very disturbed, we are just tense about something, if you are going to listen the music, what happen, it will just calm your mind, cool your mind, so all the tensions will be
gone. काव्य कला और संगीत कला दोनों अनन्याश्रित हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी काव्य कला को ऊंचा स्थान क्यों दिया जाता है? लास्ट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। देन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सो सम वर्ड्स विल बी गिवन हियर, यू हैव टू मेक द सेंटेंस। सहयोग करना मतलब हेल्प, यूज टू हेल्प। सरकार के कामों में जनता को भी सहयोग करना चाहिए। सो इन गवर्नमेंट वर्क नॉर्मल पब्लिक ऑल्सो हेल्प देम। यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार, हाउ मच यू आर कैपेबल। सरकार आम जनता के जीवन को सुखमय करने के लिए यथाशक्ति प्रयास करती है। आविर्भाव, मौका पाकर ही शक्ति और क्षमता का आविर्भाव होता है। आविर्भाव का मतलब है उत्पन्न होना और इन्वेंशन। मौका पाकर, whenever you are getting the scope, then your power, your energy, everything is going to produce. प्रसन्न होना मीन्स हैप्पी। सुरीली गीत सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं। सो whenever we are going to listen good music, good song, then we'll be happy. विधान करना, दक्षिण के मंदिर देखने वालों के मन में भक्ति का विधान करने वाले हैं। सुचारू रूप, बाग बगीचा का सुचारू रूप मनमोहक है। बगीचों का सुचारू रूप मनमोहक है। द्वैतक होना, जापान की उन्नति मेहनत का द्वैतक है। सन्निकर्ष, उद्योगपति आकर्षक विज्ञापनों द्वारा जनता से सन्निकर्ष स्थापित करते हैं। मध्यस्थता, अपने मामलों में तीसरे की मध्यस्थता से हमारी ही हानि होगी। वशीभूत होना, लोग आसानी से लोग के वशीभूत होते हैं। कंट्रोल, वशीभूत का मतलब कंट्रोल। कसौटी, परीक्षा में पाने वाले अंक नहीं बल्कि सद्व्यवहार ही पढ़ाई की कसौटी है। ज्ञात होना, अब दुनिया को ज्ञात हो गया है कि पाकिस्तान आतंकियों का डेरा है। So these are the question answers from your the second lesson, Kala ka Vision. This is a very important lesson, children. From here you can get this make the sentence for 2 marks and very short question answers. कला के कितने भेद होते हैं, ये जो दोनों कलाएं हैं, ललित कला और के अंदर काव्य कला और संगीत कला, ये कैसे अनन्याश्रित हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कला के कितने भेद हैं, ये सारे एज ए होल यू कैन से दैट दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट topic from the exam point of view. I hope children you understood all the question answers and summary of this lessons. Thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel so that I can upload more and more videos. Thank you.